चलो, so let's discuss the syntax of the table tag. I think all the syntax are left. We have done only the attributes of the tags, the meaning of the tag, uses of the tags and attributes we have done. Now we are Yes, going ma'am. to discuss that syntax of every tag, right? So starting from the first one, HTML का structure, I think that is very much clear to all. How to write the structure of HTML document. Now the first tag, that is the body tag. How you are going to write body bg color, whatever the color it's given to you, so you have to write it here, color code or color name. So this is a body bg color. Same way, when you want to give the text color means the color of the text of a web page. So same way you have to give a color name here, or either you can give color code also inside the text attribute. Then left margin, here you have to specify any numeric value that will be in the pixels. Similarly, top margin, to specify the value. The same way you are giving the value for the left margin. Okay, so in between you have to give a value. And if you are using the background, if you want to give image on the background of a web page, so we will be using background attribute for that. So body background equal to URL of image file. All right. With the background attribute, you can give text color, you can give left margin or top margin, but at a time either the bg color will be used or the background attribute will be used. दोनों इकट्ठे नहीं यूज होंगे, एक टाइम पे एक ही यूज होएगा, either bg color or background color. So clear? So let's say if I want to write the example for the same. So body bg color, जो भी आप कलर बैकग्राउंड पे दे रहे हैं, देन टेक्स्ट का कलर जो भी आप सेट कर रहे हो. Okay, in between left margin and right margin, you can give the spacing from the left side and from the top side. This way we can give a spacings. All right, and in case if you are using the background as an image, so body background. Now here you have to specify a path. Path किसका? Image का. For example, I am saying the image C drive under the folder images with the name. Like this you have to specify. Okay, you can also give top margin and left margin. Right? Any doubt? No, ma'am. Now, the next tag is, if you want to make your text appear in the center of the web page, we will be using center tag, then the text, then close the center tag. Similarly, for making the text bold, B tag, जो भी text को bold करना है, then close the B tag. Similarly, U tag for making the text as underline, and I for italic. This way you can make your text either in the center, bold, underline and italic. If you wish to apply all these things, but you want to do the nesting, so nesting means, nesting का मतलब क्या होता है? The tag inside some another tag. एक tag के अंदर दूसरा कोई tag. The order of opening of tag should be in the reverse order of the closing of tag. जिस भी order में आप tags open करेंगे, उसके reverse order में tags को हम close करेंगे.
right? So center B, अब मुझे सारा कुछ इन चीजों पे लगाना है, तो आई विल नॉट राइट दी सेपरेट लाइन, चार बारी लाइन नहीं बनाऊंगी मैं, सेंटर टेक्स्ट, बी टेक्स्ट, यू टेक्स्ट, आई टेक्स्ट, नो. अगर ये एक काम के लिए तो यू कैन डू इट, बट इफ यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज 4 टैग्स कलेक्टिवली, सो डू इट इन अ नेस्टिंग फॉर्म. अब यहाँ पे मैंने सेंटर भी लगा दिया, मैं उस टेक्स्ट को बोल्ड भी कर रही हूँ, मैं उसको इटैलिक भी कर रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग इट एज अ अंडरलाइन. सो राइट डाउन द टेक्स्ट हियर, जिसको भी आप ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं. Now the order is very much particular here. जिस भी ऑर्डर में आपके टैग्स ओपन हुए हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में यू हैव टू क्लोज दी टैग्स. सो यू टैग बंद करा, आई टैग बंद करा, वी टैग बंद करा, एंड देन सेंटर टैग. ओके, so this way you can do the nesting of tags. What do we call this? Nesting of tags. Nesting of tags means one tag is inside the another tag, right? Now the next tag, that is a font tag. You can give color attribute inside the font tag. Font color equal to color name. Then you can give face. Face means the style of text or the font of a text. Then you can give size of a font, जितना भी आपको size रखना है. So here you can give any value in this. So for example, font color, I want my text to be appear in silver color. I want the style of the font should be Verdana, and the size of the font should be 3. All right, the size of the font should be 3. Now the font size can be given from 1 to 7. Font का size आप कितना दे सकते हैं? जो font size है that will vary from 1 to 7. The default font size is 3. The default font size is 3. Clear? So from page number 80, you can underline it. The size, open page number 80, hurry up. Open page number 80 from the book. The font tag lets you change the size, color, and style of the text segment. It is used for changing the appearance of the text. The size attribute is used to increase or decrease the size of the text, whereas color attribute is used for changing the color of the text. The value of the size can be from 1 to 7, or it can be an absolute value. The default font size will be 3. Right? So you can learn the description from the book as well, or we have already discussed. I have already told you the meaning, so you can write in your own words also. Font tag that is used to change the font style, color, and size of a font. So any doubt? So we know that this is a container tag. So like this, whatever the text you want to put inside the font tag, the text will be here, and then you have to close the font tag. Clear? The syntax of font tag, is it clear to all? Yes, meaning of font tag, done? Okay. Now, next coming on to the tag, BR, we already know that when we wish to break the line and shift our text to the next line, we will simply use the BR tag in that case. आपको क्या करना है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, okay, now you wish to break a line here, so use BR tag and text. So this will break the text. जो आपका सेकंड वाला जो text 2 है वो आपका न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा. All right? Yes, any doubt? The BR tag. One student of 6 classes in our class. Ekam Veer, 6th B.
तो एकमवीर आपको पता चल गया होगा ना, दिस इज नॉट योर पीरियड, इट्स द पीरियड ऑफ 7th A क्लास. So look at your timetable carefully and join the respective period. Okay. Okay. The next tag, that is the P tag. So again, it is a container tag. P. If you wish to align your paragraph in either of the directions, so we can give a line attribute value here, then a corresponding text, then you have to close a P tag. For example, P tag, I want my paragraph to be right aligned. So P align equal to right. यहाँ पे आपका जो भी content है, and then you are going to close the P tag. The values of the align attribute in P tag are, कौन-कौन सी values होती हैं? Left, right, center and justify. The default alignment is left. The default alignment is left. P tag is clear. Similarly, if you want to give heading in your document, अगर अब आपको heading लगानी है अपनी document के अंदर, so for the tag that is used for the heading, we know that total heading tags are H1 to H6. The highest heading tag is H1. This is the highest heading. The lowest heading is H6. This is the lowest heading. And how you can write? What will be the syntax for that? Again, you can use the align attribute H1 align equal to center. If you wish to apply your heading in the center of a web page, so here the content or a text will be there, and then you have to close the heading tag because this is a container tag. So H1 similarly, अगर आपको कोई और heading बनानी है, for example अगर मुझे heading 3 देना है और उसकी alignment मुझे right set करनी है, so this way you can set. All right. So left, right and center are the values of the align attribute. In case of the heading tag, the default alignment is left. Excuse me, ma'am. मैम जब हमने H1 का सिंटैक्स से लिखना है तो मैम उसमें ये नेसेसरी तो नहीं है ना, हमने हमेशा अलाइनमेंट लगानी है जो लेफ्ट होती है डिफॉल्ट, उसमें भी हम लिख सकते हैं. आप इस तरह से भी दे सकते हैं H N मींस यहाँ पे N तो अभी मेरे पास इस तरह से आ रहा है, बट यू कैन राइट इट इन अ बेस. आप बेस में भी दे सकते हैं HN देन टेक्स्ट एंड देन क्लोज दी HN where N range from 1 to 6, that is H1, H2, H3, H4, H5 and H6. All right. ओके मैम. मैम जब हम N अप्लाई करेंगे तो कौन से हेडिंग लेवल अप्लाई होगा उसमें? N मतलब N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके 6 तक. वो आपकी मैम मतलब वो रैंडम होगी. आपने बतानी है कि N की वैल्यू वहां पे क्या है between 1 to 6. You have to tell that. Right. So this was the syntax. Okay, so 3 tags we are left with. That other tag is SUP, that is superscript. Okay. Again, it is a container tag. जो भी tags आप SUP के अंदर डालेंगे वो आपका superscript बन जाएगा. For example, अगर मुझे 2 raised to power n डिपिक्ट करना है, so what will be the code for that? 2. अब मुझे n की वैल्यू raised to power बनानी है, so for n I am going to write SUP tag open. n को मुझे superscript में रखना है, तो SUP close. All right. So this is superscript. Similarly, अगर मुझे कोई चीज को बेस में रखना है, the tag will be SUB, that is subscript, right? And then you have to close the SUB tag. For example, अगर मुझे कुछ इस तरह से बनाना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO, अब 2 की वैल्यू मुझे बेस पे लेके आनी है,
सबस्क्रिप्ट बनाना है तो व्हाट आई विल राइट SUB2 देन क्लोज SUB। जिस चीज को रेज टू पार करना है उसको हम SUP टैग के अंदर डाल देंगे, जिसको हमने सबस्क्रिप्ट में बेस में लेके आना है उसको हम SUB टैग में डाल देंगे। क्लियर? सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। All right. So should I give you one example for the superscript and subscript? So try that. Okay, let me give you one example here. अभी मेरे पास यहाँ पे आई एम नॉट हैविंग दैट फीचर कि मैं उसको रेज टू पार बनाऊं. सो यू कैन राइट, तो इट विल गोइंग टू बी रेज. फटाफट से देख लो स्क्रीन के ऊपर व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आई वांट. A square plus, write down in your notebooks, plus B square plus 2AB. Once again look, A square plus B square plus 2AB. मैम जो 2 के बाद आपने ए बी डाला वो ऊपर रेज टू पार में डाला था कि वो नीचे नॉर्मल है, वो नॉर्मल है. ओके A square plus B square plus 2AB. So let's write the code for the same now. Okay, tell me the answer. क्या आएगा कोडिंग में? यस मैम. मैम Ma'am, A square. मैम tell we will open SUP tag Right. and ma'am then we will write 2 and then we will close SUP tag. क्योंकि मुझे 2 को क्या बनाना है? सुपरस्क्रिप्ट बनाना है. For making that superscript, तो इसको मुझे रेज टू पार करना पड़ रहा है. ठीक है? That the tag will be SUP will be used here. Okay. Then प्लस डाला था मैंने A square. Yes ma'am. A square बन गया प्लस B square. Yes ma'am. Ma'am now we will write B B. and then we will open SUP tag SUP. and we will write 2 and ma'am Let's then we close. will close SUP tag. And then we will close SUP tag. Equal to A square Ma'am plus now we will square. write Sorry, A square plus B square plus 2AB. ma'am 2AB. क्योंकि वो तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट ही था. क्लियर? Yes, ma'am. So coding is clear. How to do this? Yes, ma'am. Okay. So let's come on to the table tag now. The last tag in our chapter. The syntax of table tag. Table के अंदर you can have n number of attributes. So हम बाद में करते हैं. पहले we are simply going to make a syntax for the table. So table for now, for creating a row, what I have to write? TR. TR tag. TR Then tag. we are going to TD make tag. the cells. TD. So I am assuming 2 cells are there in a particular row. So that's why 2 times the TD tag, then close the TR tag, close the table tag. Table tag. Right? Yes, ma'am. Now, next, you can write the attributes table. क्या-क्या लगा सकते हैं हम? BG color. BG Here you color. are going to give the color, right? Then align for setting the alignment of a table. Then cell spacing. Give a value. Cell padding. Ma'am height. Yes, we can give height of a table. Ma'am width. Width. Ma'am border and border color. Border color. Okay. And So ma'am ये background काफी- also. Yeah, but that can be only one case ना, चाहे आप BG color लगा रहे हो चाहे background, दोनों इकट्ठे नहीं लगे. Yes ma'am. ठीक है. Now coming on to the TR. TR के बाद आपके क्या आ रहे हैं? TD. Okay. TD. And then you are going to close the TR tag and then you are going to close the table tag. Now
Let's discuss the attributes of TR and TD now. TR टैग के अंदर भी आप बच्चे बीजी कलर दे सकते हैं और यू कैन अप्लाई द बैकग्राउंड. आप किसी रो के ऊपर, एक रो के ऊपर सेपरेटली डिफरेंट कलर सेट कर सकते हो, एक इमेज लगा सकते हो. यू कैन सेट अलाइनमेंट. ठीक है, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं हम. वी कैन सेट द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर रो. सिमिलरली टीडी के अंदर हम अलाइन कर सकते हैं, वी अलाइन कर सकते हैं, बीजी कलर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं. So all these are the attributes of TD tag. ओके, तो रो को भी पर्टिकुलरली आप अलाइन कर सकते हो, उसकी हाइट सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर्स लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो. सिमिलरली टीडी टैग के अंदर भी हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वी अलाइन सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं. नाउ इन योर माइंड मे बी द क्वेश्चन इज अलाइन एंड वी अलाइन. अलाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए बना है, जब आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करनी है. वी अलाइन व्हेन यू विश टू वर्टिकली अलाइन द कंटेंट ऑफ अ सेल. हॉरिजॉन्टल में जो आप वैल्यूज रख सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट की, दैट इज अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, राइट और सेंटर. मतलब अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर. लेकिन अगर आप वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, वी अलाइन की वैल्यूज हो सकती हैं टॉप, बॉटम, मिडल. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ वी अलाइन एट्रीब्यूट, टॉप, बॉटम और मिडल. क्लियर? द स्ट्रक्चर एंड द सिंटैक्स ऑफ टेबल टैग इज क्लियर? Yes, everyone? All right. Yes, Now, ma'am. let's look at the coding for a table tag now. एक इसको practically क्वेश्चन करके देखते हैं. Okay, so I have already made this. So just look at the coding. So carefully see what I am going to do. Okay, I have set टाइटल में मैंने लगा दिया डेमो ऑफ टेबल टैग. बॉडी में देखो, बॉडी में मैंने क्या करा, आई हैव सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द बॉडी, दैट इज मैंने स्काई ब्लू रखा है और टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लू दिया. टेबल का बैकग्राउंड कलर, सो आई एम गोइंग टू यूज हियर बीजी कलर. टेबल बीजी कलर, लेट इट बी. टेबल का बैकग्राउंड कलर हम पिंक रख देते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर पेज का कौन सा आ रहा है, स्काई ब्लू कलर, और टेबल का बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, पिंक. Then we have set the border, value of border दे दी, height set कर दी टेबल की, width set कर दी. टेबल को हम सेंटर में रख रहे हैं वेब पेज के. बॉर्डर का कलर हम ब्लू दे रहे हैं. सेल स्पेसिंग की वैल्यू दी और सेल पैडिंग की वैल्यू दी. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये लाइन सबको क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट. Yes, ma'am. कैप्शन टैग क्या होता है? कैप्शन टैग हम टेबल टैग के अंदर यूज कर सकते हैं whenever we want to give heading of a table. अगर आप टेबल के ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं कि टेबल का एक डिस्क्रिप्शन आए, तो दैट वी कैन गिव यूजिंग अ कैप्शन टैग. ओके, अगर आप इसको ओमिट भी करना चाहते हो तो नो इशू, बिकॉज दिस टैग इज नॉट इन योर सिलेबस आई गेस, सो यू कैन ओमिट दैट. लेकिन फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन हैव अ नॉलेज कि हम कैप्शन टैग से टेबल की हेडिंग दे सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद मैंने एक टीआर बनाई. टीआर के अंदर मैंने टीएच टैग यूज करा एंड वी नो दैट टीएच टैग इज अ हेडर सेल, टीडी इज अ नॉर्मल सेल. जो नॉर्मल सेल है उसका कंटेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होके आता है. सो आई वांट माय कंटेंट टू बी सेंटर्ड अलाइन, सो दैट्स व्हाई मैंने टीआर के अंदर लगा दिया टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर. इससे क्या होगा, 01 एंड अमित सेल के सेंटर में आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टीडी में क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है.
Okay, so by using a line equal to center, I can make my text to be appear in the center of a web page. लेकिन जो th टैग है वहां पे हमें अलाइन एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है. Why so? th टैग automatically gives the data in bold plus center align. th टैग में हमें ना बोल्ड करने की जरूरत है ना हमें सेंटर करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है whenever you are going to make a header cell, automatically it will come in the center of the row plus it will be bold. तभी वो हेडिंग बनेगी. ठीक है, बोल्ड में आएगा. नाउ नेक्स्ट थर्ड एक टीआर मैंने बनाई और थर्ड वाली रो के अंदर मैंने एक बीजी कलर सेट कर दिया रो पे. मतलब पहली रो पे बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है, सेकंड रो के ऊपर हमने कोई कलर नहीं लगाया तो उसमें क्या आएगा, पिंक कलर आएगा जो टेबल का अपना बैकग्राउंड कलर था. अगर हम कोई कलर नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली टेबल का बैकग्राउंड कलर आएगा. ओके, थर्ड रो में फिर से मैंने कलर चेंज कर दिया और मैंने बीजी कलर लगा दिया. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड रो के अंदर टीडी के अंदर मैंने अलाइन एट्रीब्यूट लगाया. सो दिस मीन्स अगर मैं टीआर के अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर कर रही हूँ तो इसके अंदर जितने भी टीडीज हैं सबकी अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगी. अगर आप टीआर के अंदर अलाइन नहीं लगाते हैं, अगर आपको इंडिविजुअली हर सेल की अलाइनमेंट डिफरेंट रखनी है तो आप टीडी के अंदर सेपरेट वैल्यूज भी दे सकते हैं. जैसे मैंने पहले वाले सेल की अलाइनमेंट सेंटर करी है, सेकंड वाले सेल की अलाइनमेंट मैंने राइट साइड पे रखी है. अगर मैं यही चीज टीआर अलाइन के साथ करती तो फिर सारी की सारी टीडीज पे सेम तरह की अलाइनमेंट रहनी थी. ओके, आई जस्ट वांट टू मेक इट डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई मैंने टीडी के ऊपर डिफरेंट अलाइनमेंट सेट कर दी इंडिविजुअली. क्लियर? यहाँ पे भी मैंने अब यहाँ पे क्या था, मैंने रो के ऊपर बैकग्राउंड सेट करा है, यहाँ पे टेबल का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी रो के ऊपर कलर सेट करा. अब आई टोल्ड यू कि आप टीडी के अंदर भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो. किसी पर्टिकुलरली एक सेल का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो. सो यहाँ तक क्लियर? क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, जैसे आपने कहा कि जो हम जब उसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं, अगर हम वो टीआर टैग में करें तो वो ऑटोमेटिकली सारे टीडी सेल्स के अंदर अप्लाई हो जाती है. यस. तो मैम ये सेम रूल कलर्स के लिए भी अप्लाई होता है? अगर हम टीआर का कोई कलर अप्लाई करें तो सेम वो कॉलम्स के अगर लिए आप हो जाएगा? टीआर के ऊपर बीजी कलर सेट कर रहे हो तो ये दोनों सेल्स के लिए कलर चाहिए. लेकिन अगर Okay, आप ma'am. एक सेल के लिए रन करने हैं तो फिर आप टीआर में नहीं लगाओगे, यू विल बी अप्लाइंग द कलर इनसाइड अ टीडी टैग, क्योंकि आप इंडिविजुअली एक सेल के ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहे हो. मैम, अब जैसे फिर आपने ये टीडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे किया, तो मतलब ये पर्टिकुलर एक कॉलम का कलर ग्रे होगा? एक कॉलम का कलर, एक सेल का कलर ग्रे होगा, पूरे कॉलम का नहीं, एक रो के अंदर एक सेल का कलर ग्रे सेट कर दिया हमने. ऑलराइट, टीएच टैग की फुल फॉर्म क्या है? टेबल हेड. टेबल हेड. तो मैम लाइक हमने फिर अगर पर्टिकुलरली अगर हमें किसी को कलर देना है किसी कॉलम को या किसी रो को, तो हमें टीडी टैग को यूज करना है. यस. ओके. So coding is clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Let's look Yes, at ma'am. output. तो ये क्या आ रहा है, बीजी कलर आ रहा है. Ma'am, कहाँ से आ रहा स्काई है? ब्लू कलर. क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, मैं कोडिंग भी साथ में ही आपको दिखाती हूँ साइड बाय साइड. नाउ सी, हमने क्या किया था, हमने टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है, दैट इज स्काई ब्लू. सो दैट्स व्हाई सॉरी, बॉडी का बीजी कलर सेट किया हुआ है स्काई ब्लू, तो पूरे के ऊपर बैकग्राउंड कलर हमारा स्काई ब्लू आ रहा है. टेक्स्ट का कलर ब्लू सेट किया है तो देखो कंटेंट सारा ब्लू कलर में अपीयर हो रहा है. राइट. फिर टेबल का बीजी कलर हमने सेट किया है पिंक, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक आ रहा है. बॉर्डर की वैल्यू 4 आ रही है और बॉर्डर कलर हमने दिया हुआ है ब्लू, तो देखो टेबल का बॉर्डर भी ब्लू कलर में अपीयर हो रहा है. हाइट एंड विड्थ हमने सेट करी और हमने बोला टेबल जो है वो अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो टेबल पूरे के पूरे वेब पेज में सेंटर में दिखाई दे, तो इसीलिए ये सेंटर में अपीयर हो रहा है. देन वी हैव सेट द वैल्यूज फॉर सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग. जितनी बीच में स्पेसिंग आ रही है सेल्स के, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग. और जो कंटेंट और उसके बीच में जो खाली स्पेस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सेल पैडिंग से. नाउ फर्स्ट रो में मैंने सेट करा द बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो, तो टीआर बीजी कलर येलो लगाया, तो पहली रो का कलर येलो में अपीयर हो रहा है.
और पहली रो के अंदर हमने TH टैग लगाया, मतलब हेडर सेल्स। अब देखो रोल नंबर और 1 में देखो डिफरेंस है, ये मेरा TD से आ रहा है तो ये नॉर्मल है, रोल नंबर के लिए मैंने TH लगाया तो आप देखो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है, ओके, और ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है। मैंने इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट इज अपीयरिंग इन द सेंटर ऑफ अ सेल। देन सेकेंड रो के ऊपर हमने क्या किया, TR अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो इसका कंटेंट मैंने सेंटर में किया, तो देखो दोनों सेल्स का कंटेंट सेंटर में आ रहा है, अमित एंड 1। थर्ड रो में हमने बैकग्राउंड कलर मैरून लगाया था, तो TR BG कलर इक्वल टू मैरून, रो का कलर मैरून आ गया। और TD में हमने अलाइनमेंट सेट करी कि 2 की अलाइनमेंट सेंटर में हो, कैमलिन की अलाइनमेंट राइट साइड पे हो, तो देखो कैमलिन राइट साइड पे आ रहे, ओके। फोर्थ रो में हमने कुछ भी कलर नहीं सेट करा, फोर्थ रो में नॉर्मल TD इक्वल टू 3 बनाया, तो कोई अलाइनमेंट नहीं सेट करी, ना ही रो में ना ही सेल में, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आएगी, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट शो कर रहा है। सेकेंड सेल के अंदर हमने BG कलर ग्रे सेट किया, तो बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है। क्लियर? ऑल द 4 रोज डिस्कस्ड, एनी डाउट? यस मैम। मैम एक No, रो में ma'am. 2 सेल्स होते हैं हाँ मैम, जी। बाय डिफॉल्ट एक रो में 2 सेल्स होते हैं। नो, यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैंने 2 मैम TDs खोली हुई हैं, TR के अंदर मैंने 2 TH लगाए हैं, अगर आप 3 लगा दोगे तो 3 सेल बन जाएंगे, 4 बार लिखोगे TH TD तो 4 सेल्स बन जाएंगे। एक TD का मतलब है एक सेल बनना। Now how many cells you want to make in one row, you have to open that number of times the TD or TH tab. ओके मैम। Okay, so the table tag is clear. Any doubt? मैम Especially मतलब जैसे आपने कहा कि जो सेल्स बनाते हैं जितने आप TH टैग लगाओगे तो उतने सेल्स बनते रहेंगे। मैम जैसे अगर हमने इसमें और करना होता तो फिर नेम वाला टैग जो है उसके नीचे एंटर करके एक और TH लिख हाँ, के एक फिर और आगे TH आपने स्टार्ट कर देना था, तो दैट विल मेक अ सेपरेट सेल, तो 3 सेल फिर मतलब पूरे टेबल में 3 सेल्स हो जाते हैं। पूरे टेबल में 3, तो मतलब आपको हर रो के अंदर 3 बारी TD, 3 बारी TD, 3 बारी TH, ये सब कुछ लगाना पड़ता है। ओके, सो क्लियर, फुल फ्लैश मैम अगर हम चैप्टर। हाँ जी मैम अगर हमने एक रो में 3 सेल्स दिए तो हम नेक्स्ट रो में 2 सेल्स दे सकते हैं। Yes, we can give that, but there will be a new concept that is called call span and row span, क्योंकि अदरवाइज टेबल का सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो उसको कॉमन रखने के लिए फिर हमें कोई 2 न्यू एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ते हैं। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यू विल डू दैट इन 8th क्लास। हम 8th में वो करेंगे कि अगर हमें सबके अंदर सेम कॉलम्स नहीं रखने हैं, सेम सेल नहीं रखने, तो हम स्ट्रक्चर कैसे सेट करें अपने टेबल का, वी कैन डू। ओके मैम। All right, so full-fledged chapter HTML we have done. So give it a revision once again. Okay, tomorrow we are going to discuss some of the one-line code questions. Right? ओके मैम। एंड मैम जो आपने अलाइन का एक दूसरा बताया था जो वी अलाइन है, V-align. That उसमें is V-align. जैसे हम अलाइन का एट्रीब्यूट देके लिखते हैं वैसे वी अलाइन का भी सेम लिखना है कि Same. TD वी अलाइन V-align, इक्वल टू बॉटम। V-align. Yes. चाहे आप रो के अंदर सेट कर लो, चाहे आप सेल के अंदर सेट कर लो, the same way it will work, but the values will be different. V-align में कौन सी वैल्यूज लगाओगे? टॉप, बॉटम एंड मैम टॉप बॉटम एंड मिडल। ऑल राइट, ओके मैम, ओके बच्चे, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. just a second, let me take the attendance.